ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں بھٹک گئے۔ عصر کا وقت تھا اور سورج تیزی سے ڈل رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر پڑی جس کا نام شہزادی مدھو تھا، جو اپنی کنیزاؤں کے ساتھ شکار پر نکلی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیزیں اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبائے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت اگر سلطان کا تیر اس ریچھ کے حلق کے پار نہ ہوتا تو وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو اپنے پنجے میں دبا چکا ہوتا، اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر کمان سنبھالتی شاید بہت دیر ہو جاتی۔ دوستو، سلطان محمود نے پے در پہ 3 وار کر کے اس جنگلی درندے کو مار ڈالا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپاہی ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور اظہار تشکر کے لیے اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام مدھو ہے، میں ریاست جے پور کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں بھرتی کرا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ دوستو، مدھو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور ترین اسلامی لشکر کے سربراہ جناب عالی سلطان محمود غزنوی کھڑے ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجوں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے اپنی شناخت چھپاتے ہوئے کہا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر راستہ نہ ملا تو شاید آپ کو اسی گھنے جنگل میں رات گزارنا پڑے گی۔ دوستو، شہزادی مدھو جانتی تھی کہ یہ آدمی لالچ اور خوف سے پاک ہے اور وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محسوس تصور کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کریں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم کے آثار بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم کل صبح نکلیں گے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں گا۔ دوستو، مدھو کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہیں گزار سکے گی۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں اس چادر کو اوڑھ لیں۔ دوستو، شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھ لی اور ٹیک لگا کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی چہرہ اور بھی پیارا لگ رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ شہزادی کو یہ دیکھ کر ایک دم سے جھٹکا لگا کہ یہ تو مسلمان ہے۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی کہ کہیں یہ آدمی غزنی کے لشکر کا تو نہیں ہے یا تو پھر لٹیرا ہے، گائے بھینس بکری کا ماंس کھاتا ہوگا، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی ظالم ہوتا تو یہ مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان سے بھر گیا۔ دوستو، سلطان نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتے کرتے زاروں کی طرح رونے لگے۔ روتے وقت سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتا۔ دوستو، صبح ہوتے ہی
सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। थोड़ी दूर जाकर सुल्तान को एक सफेद पत्थर पड़ा मिला जो सुल्तान के सिपाही निशानी के तौर पर छोड़ गए थे। रास्ता उस तरफ से है। ये उस जमाने का तरीका था जब जंगल में पत्थर छोड़ दिए जाते थे ताकि पीछे आने वाला रास्ता आसानी से ढूंढ सके। दोस्तों, बल आकर शहजादी और सुल्तान एक हमवार रास्ते पर पहुँचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नजर आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, शहजादी, ये आपकी रियासत का गांव मालूम पड़ता है। तो शहजादी कहने लगी, हाँ, चलकर देखते हैं। गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलाया। मुखिया अपने साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 तेज रफ्तार घोड़े दिए जाएं और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें बहुत हैरत हुई है। तुम आखिर किस मिट्टी के बने हुए हो? सारी रात तुम अपने खंजर से जख्म कुरेदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं तुम्हें इनामो इकराम दूंगी। दोस्तों, सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, मैं जख्म इसलिए कुरेदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को नुकसान न पहुंचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ ना बढ़े। शहजादी कहने लगी, तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए था। हम तन्हाई में थे, लोग तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो सुल्तान कहने लगा, शहजादी साहिबा, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नजर आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मेरी रूह पर ये गुनाह का दाग कैसे धुलेगा? मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं एक मुसलमान होकर इस तरह का घिनौना काम करूं। दोस्तों, शहजादी ये जवाब सुनकर सिपाही के सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाओ और वफादारी को देखकर उसके किरदार से बड़ी मुतासर हुई। उसका दिल इस अजनबी के मजहब और उसकी जिंदगी में शामिल होने के लिए बेकरार हो गया। तो सुल्तान से इजाजत मांगते हुए शहजादी पूछने लगी, अपना और अपनी फौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर का निकाब उतारा और तीर कश कंधे पर डाले और घोड़े की रिकाबें पकड़ते हुए कहा, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है और मैं ही गजनी की अजीम शान फौज का सिपा सलार हूँ, यानी मैं बादशाह हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ी लगाई और सर पर दौड़ाते हुए अचानक आंखों से ओझल हो गया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। दोस्तों, ये थे इस्लाम के सच्चे वफादार। ऐसे होते थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और बादशाह जो इस्लाम के रास्ते पर चलकर अपनी कौम का मुकद्दर संवार देते थे। दोस्तों, किसी जमाने में एक बादशाह था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने अमीर ज़ादों और वजीरों के साथ जंगलों में निकल जाया करता था और वहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार खेला करता था। उस बादशाह को घोड़े पालने का बड़ा ही शौक था। जहाँ कहीं भी उसे कोई चालाक और फुर्तीला घोड़ा नजर आता तो उसके मालिक से सौदा तय कर लेता था और उसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता था। एक दिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस बादशाह के दरबार में अरब के एक मुल्क से घोड़ों का सौदागर आया। झुककर सौदागर ने सलाम किया और बोला, हजूर, गुलाम आपके लिए एक घोड़ा लेकर आया है, आप इसे देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसा फुर्तीला घोड़ा कि पल भर को भी इसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। आंखों के एक इशारे से ये हवा से बातें करने लगता है। लेकिन बादशाह सलामत, इस घोड़े में एक नुक्स भी है। ये मिजाज का बड़ा कड़वा है, बहुत ज्यादा बिदकता है, किसी को अपने पास आसानी से नहीं आने देता, हर वक्त दौलतियां मारता है, हत्ता कि वो अपने साये से भी बिदक जाता है। मगर हजूर, आप इस घोड़े को देखना पसंद फरमाएं तो गुलाम हाजिर कर सकता है। दोस्तों, बादशाह सलामत ने अरब के सौदागर से घोड़े की इतनी तारीफें सुनी तो वो मुस्कुरा कर बोला, मियाँ, तुम बेफिक्र रहो, अपना घोड़ा लेकर आओ। हमने यहाँ बड़े बड़े टेढ़े घोड़ों को सीधा किया है, ये तो हमारे आगे कुछ बात ही नहीं है। दोस्तों, दूसरे दिन वो सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हो गया।
घोड़े को देखकर बादशाह बड़ा खुश हुआ। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम के तौर पर चंद मोती भी दिए और घोड़ा अपने मुलाजिम के हवाले करते हुए कहने लगा, इस घोड़े को शाही अस्तबल में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतजाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने वजीरजादों के साथ शिकार खेलने जंगल में जाएंगे। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर वजीरों और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल रवाना हो गया। कुछ देर तो खैर खैरियत से गुजर गई, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था और एकदम शेर बादशाह की तरफ झपटा तो शेर के झपटने से बादशाह का घोड़ा अचानक बिदक उठा और उसने बादशाह को जमीन पर फेंक दिया। जब बादशाह के सिपाही बादशाह की मदद को पहुँचे तो शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज दांतों से बादशाह की बाएं टांग बुरी तरह से चबा डाली थी। बादशाह के सिपाही बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर अपने महल में ले आए। फौरन शाही हकीमों और तबीबों को बुलाया गया। हकीमों ने इलाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश भी बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने इस बुरी तरह से काटी थी कि वो सेहतयाब नहीं हो पाई। आखिर तबीबों ने यही फैसला किया कि अगर बादशाह की जान बचानी है तो बादशाह की टांग काटनी पड़ेगी। चुनाचा हकीमों ने बादशाह की एक टांग काट दी। थोड़े ही दिनों के अंदर बादशाह की टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया। लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बड़ा सदमा था। वो हर वक्त उदास और गमगीन रहता था। उसने शिकार पर जाना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त खामोश पड़ा रहता था। उसकी एक बड़ी खूबसूरत बेटी थी, उसका नाम नादिया था। शहजादी नादिया अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करती थी। वो उसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसके साथ मीठी मीठी बातें करती। लेकिन बादशाह का गम किसी तरह दूर नहीं हो रहा था। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बड़ा अक्लमंद और दाना था। दूर दराज से लोग उसके पास आते और अपनी मुसीबतें बयान करते थे। ये बूढ़ा आदमी उनको बड़े मुफीद मशवरे देता और उनकी जरूरतें पूरी करता था। दोस्तों, एक दिन बादशाह के वजीरों ने आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस बूढ़े को बुलाना चाहिए, शायद वो बादशाह का गम दूर कर सके। जब बूढ़ा आदमी बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह सलामत ने उसे बड़े इज्जत और एहतराम के साथ अपने पास बिठाया और कहने लगा, बड़े मियाँ, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी हो। अगर तुम किसी तरह मेरा ये गम दूर कर दो तो मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करा डालूंगा। दोस्तों, बूढ़ा बादशाह की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं ताजो तख्त लेकर आखिर क्या करूँगा। मेरी उम्र इस वक्त 80 साल के करीब है और शहजादी अभी जवान है। भला बूढ़े और जवान की भी कभी शादी हुई है। आप ऐसा कीजिए, अपने मुल्क में डंडोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए एक नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम के तौर पर दी जाएगी और उसके साथ बादशाह अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ करा देगा। क्या मालूम कोई अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला, बड़े मियाँ, बात तो तुमने बड़े पते की है। मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में मनादी करा दी गई कि जो कोई बादशाह के लिए एक नई टांग लेकर आएगा तो बादशाह उसे आधी सल्तनत और अपनी बेटी का हाथ भी देगा। ये ऐलान सुनकर सैकड़ों लोग लालच में आ गए और वो जल्दी जल्दी टांगे बनवाने लगे। चंद दिनों में सैकड़ों लोग मसनूई टांगे लेकर बादशाह के महल के सामने जमा हो गए और एक दूसरे को धक्के देने लगे और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बादशाह सलामत, मेरी टांग हाजिर है। हजूर, मैंने आपके लिए बड़ी अच्छी टांग बनाई है, आपको यकीनन बड़ी पसंद आएगी। हर आदमी की यही ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैं बादशाह के सामने पेश हूँ और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बादशाह सलामत से अनामो इकराम हासिल करूँ।
लोगों ने इतना शोर गुल मचा रखा था कि आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। महल के दरोगा ने उन्हें जबरदस्त डांट पिलाई और कहने लगा, अगर तुम लोग चुप न हुए तो मैं अभी तुम लोगों के सर उड़ा दूंगा। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें एक एक करके हमारे सामने पेश किया जाए। दोस्तों, पहला आदमी बादशाह के सामने पेश हुआ तो वो लकड़ी की टांग बनाकर लाया था। कहने लगा, बादशाह सलामत, जरा इस टांग को तो देखिए, ये मैंने खास आपके लिए बनाई है। अगर ये आपके लिए ठीक न लगी तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। दोस्तों, जब बादशाह ने वो लकड़ी की टांग अपनी कटी हुई टांग पर लगाई तो वो ऐसी भारी थी कि बादशाह का अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो गया था। बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने वही टांग उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारी और अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। ये टीन की बनी हुई टांग लाया था। देखने में ये टांग बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन बादशाह ने जब इस टांग को अपनी कटी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वो टांग बादशाह की टांग के साथ मुकम्मल तौर पर चिपक गई। लाने वाला आदमी ये मंजर देखकर डर गया और थर थर कांपने लगा। बादशाह के वजीरों ने बड़ी कोशिश की कि ये टीन की टांग किसी तरह उतर जाए, लेकिन कुछ कामयाबी न हुई। आखिर लोहार को बुलवाया गया तो उसने बादशाह को बड़ी मुसीबत से इस टांग से छुटकारा दिलवाया। बादशाह इस तकलीफ के बायस बड़े गुस्से में था। उसने हुक्म दिया कि इस बदतमीज आदमी के गले में यही टीन की टांग बांधकर इसे बतखों वाले तालाब में फेंक दिया जाए। दोस्तों, और भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ टांगे लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए थे। उनमें से एक ऐसा बेवकूफ भी शामिल था जो रुई और कपड़ों की टांगे बनाकर लाया था, और कई तो बांस की टांगे बनाकर लाए थे। ये सारा सिलसिला शाम तक जारी रहा। गर्ज तरह तरह की टांगे बादशाह की खिदमत में पेश की गयीं, लेकिन सब की सब बेकार थी। चुनाचा इन टांगों के लाने वालों का बड़ा बुरा हाल हुआ और उन्हें धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया गया। बादशाह फिर से उदास रहने लगा। वो सारा दिन गम में डूबा रहता था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था। दोस्तों, महल में सारे लोग बड़े उदास थे। कई महीने इसी तरह गुजर गए। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। शहजादी नादिया अपने बाप की हालत देखकर हर वक्त रोती रहती थी। दरबार के हकीमों तबीबों ने एक दूसरे से कहा, अगर बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहे और गम खाते रहे तो ये थोड़े दिनों में मर जाएंगे। दोस्तों, इस तरह कुछ और अरसा गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार में बड़ा खूबसूरत शहजादा हाजिर हुआ और शहजादे ने बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इस नौजवान को अपने पास बुलाया और आने की वजह पूछी तो उसी वक्त बादशाह की बेटी नादिया भी अपने बाप के पास ही एक छोटे से तख्त पर बैठी हुई थी। वो खूबसूरत शहजादे को देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादी नादिया एकदम से शर्मा गई। शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, इस गुलाम को आपके दुख का मालूम हुआ है। मैंने आपकी उदासी और गम का राज मालूम कर लिया है। आप इसी वक्त अपने तमाम अमीरों और वजीरों को अपने पास बुला लें। इस वक्त मैं हुजूर की खिदमत में सचमुच की टांग बनाकर पेश करूंगा। वो लकड़ी, टीन, कपड़े या रुई की ऐसी वैसी वाहिया टांग नहीं होगी, बल्कि खून और गोश्त से बनी टांग होगी। दोस्तों, बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठी। तो बादशाह कहने लगा, ऐ नौजवान, क्या तुम सच कहते हो? तो शहजादे ने कहा, कल इसी वक्त दरबार में हुजूर आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि मैं सच कहता हूँ या झूठ कहता हूँ। दोस्तों, ये कहकर शहजादा बड़े अदब से झुका, बादशाह को सलाम किया और तेजी से दरबार से बाहर चला गया। दूसरे दिन बादशाह सलामत ने अपने सब अमीरों और वजीरों को दरबार में जमा किया। बादशाह की बेटी कल की तरह आज भी उनके पास ही बैठी हुई थी। सब लोग बड़ी बेसब्री से शहजादे का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बॉक्स था। वो शहजादा बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, लीजिए बादशाह सलामत, यही वो खून और गोश्त की बनी हुई टांग है जिसका मैंने कल आपसे वादा किया था। ये कहकर उसने लकड़ी का बॉक्स खोला तो एक हिरन की टांग निकाल कर बादशाह के सामने पेश कर दी तो तमाम दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीरों और वजीरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी।
बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया तो उसने शहजादे की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। फिर अचानक से एकदम उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने जोर से एक कहका लगाया। ये देखकर दरबार के दरबारी बड़े हैरान हुए। जब उन्होंने अपने बादशाह को हंसते हुए देखा तो वो सब भी हंसने लगे और शहजादी नादिया का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान शहजादे, तुमने बड़ी अक्लमंदी और होशियारी से ये शर्त जीत ली है। मैं तुम्हें इसकी दाद देता हूँ। तुमने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरी है। अब मैं कभी गमगीन नहीं रहूंगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हें इनाम के तौर पर आधी सल्तनत भी दी जाएगी। दोस्तों, दूसरे दिन शहजादे और शहजादी नादिया की शादी हो गई। उस रोज बादशाह ने सब लोगों के लिए एक बड़ी पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया। शहजादा, शहजादी और बादशाह ने खूब मजे लेकर वो खाने खाए।